who is also coordinator of this FDP program. She has been a faculty in our college since last so many years with many publications and papers under her name. She is the brain behind this efficient planning of this FDP, and a very hardworking and dedicated. I would now welcome Dr. Jyoti Trivedi, ma'am, to please start the session. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Aparna. But actually, my contribution is very little. Everybody, Dr. Radhit Saxena, principal sir, everybody, Honorable Vice Chancellor, all of you, और आप लोग now to the participants, आप लोग मुझे 5 दिन से झेल रहे हो, है ना? तो मुझे क्या introduce करना? But I will start with Google Classroom. It's going to be a purely hands-on session. मैंने कोई slides नहीं बनाई, theory पे कुछ नहीं. I'll just show you. Okay, 2 participants raise their hands. Am I audible? Okay. Am I audible? Am I audible, Aparna? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfectly fine. So I'm going to talk about Google Classroom. Before that, I'll just give a small introduction about how we started using this. अभी जब pandemic हुआ, तो जैसे सब लोग कंफ्यूज थे ऐसे हम भी कंफ्यूज थे. उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते. जैसे सबने फायर फाइटिंग करी, हमने भी फायर फाइटिंग करी. जूम शुरू करा, फिर उसमें कुछ इश्यूज आए, देन वी वेंट बैक एंड फोर्थ इटरेटिव प्रोसेस करके फिर गूगल क्लासरूम के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में पता चला, फिर उसको एक्सप्लोर करा, फिर देखा कि हमारे पास जी स्वीट अकाउंट है तो हमने गूगल क्लासरूम शुरू करा. तो हम में से बहुत सारे लोगों ने कि पूरा ये जो बचा हुआ सेमेस्टर था उसका काम गूगल क्लासरूम पे किया और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो आई विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस गूगल क्लासरूम एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स. 2 चीजें हैं, एक तो है वर्चुअल क्लास, एक है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. अभी जैसे हमने मूडल करा, मूडल इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. What I understand, and I stand corrected, when I talk about virtual classroom, I essentially mean a video conferencing kind of a thing with interaction, chat, etc. A learning management system is a complete resource management system. और बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है. कुछ तो मैंने थोड़ा बहुत जिसके बारे में पढ़ा हुआ है, कुछ मैंने खुद से देखा हुआ है किसी कॉन्टैक्ट से या किसी से, और कुछ इसमें से ओपन सोर्स है और कुछ जो है वो पेड है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वेरी नाइस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड D2L. It says uppercase D, number 2L, which reads as desire to learn. They have a very good learning management system. And there is something called Sakai, Sakai. Sakai is again open source like Moodle. Then there is one Blackboard. अब ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये इंस्टीट्यूट्स अडॉप्ट करते हैं. अडॉप्ट मीन्स ईदर दे बाय इट और दे यूज इट फ्रॉम ओपन सोर्स व्हाटएवर. तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, पूरे इंस्टीट्यूट की कोलैबोरेशन होती है, विच इंक्लूड्स स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, काउंसलर्स, कोऑर्डिनेटर्स, एवरीबडी. Now, Google Classroom may fall into the category of learning management system, but it's a poor cousin. I know Google is a huge IT giant, but Google Classroom जो है, it runs as a service. It's an app, right? तो इसमें administrators, counselors वगैरह का कुछ रोल नहीं है, but yes, teachers and students can collaborate. ये सेशन मैंने देशबंधु कॉलेज फैकल्टी के लिए भी लिया हुआ है. It is a repetition for them. I'm sorry if you get bored, but nevertheless, so I'll just introduce Google Classroom. Now, Google Classroom, it's a free service which is available on the internet. आपको कुछ install करने की ज़रूरत नहीं है. You just go to classroom.google.com. I'll show you all the steps how to do it. And XML is used to encode all the communications. It is secure. Google claims end-to-end encryption, and they use industry standards. Till now, none of the forums, none of the complaints have been received about the security of transmission of data, etc. And this service provides teachers and students with a collaborative tool. Collaborative tool means they all can work together. They can communicate together. There's a two-way communication. Okay. So, and what can teachers do? Teachers क्या क्या कर सकते हैं?
There's a message, somebody cannot. Okay, teachers can create classes. जैसे हम अपने रजिस्टर में क्लास का नाम लिखते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे इसमें हम क्लास कर सकते हैं. टीचर्स कैन पोस्ट कमेंट्स, दे कैन पोस्ट असाइनमेंट्स, दे कैन पोस्ट रीडिंग मटेरियल, और मैं सब कुछ एक एक स्टेप करके दिखाऊंगी. स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट वापस कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं असाइनमेंट्स, और टीचर ग्रेड भी कर सकता है और वहीं पे देख भी सकता है. स्टूडेंट्स भी ग्रेड देख सकते हैं अपना, टीचर्स भी ग्रेड देख सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू stop sharing this presentation. That's all I have to present. Now I'm going to have all hands on. Just bear with me for a moment. Can you all see my browser? Hopefully. Okay. So see how I can go to Google Classroom. Let me switch off the video. Okay, so जैसे मैंने ब्राउजर खोला, you see this. This is one way to go to Google Classroom. This is the icon for Google Classroom. Or I can just say, now you see, I'll get a message and I'll explain you what this message is. Jyoti ma'am, your screen is not shared. Yes, I just realized that. I stopped sharing. Now can you see? Yes, now you can see. Okay, I'm going to start from the beginning. So I talked about this. I opened my browser and this was the icon for Google Classroom, right? This is one way. The other way, you can just say classroom.google.com. It just takes me to a blank page. Okay, you see this plus sign? I can join or create a class. तो अगर स्टूडेंट होगा तो क्लास ज्वाइन करेगा और टीचर होगा तो क्लास क्रिएट करेगा. ये वाला जो मेरा अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है tjyoti70@gmail.com. मैंने पर्पसली यहाँ से स्टार्ट किया है. आई वांट टू शो यू समथिंग. सपोज मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ और मुझे क्लास क्रिएट करनी है. आई जस्ट से क्रिएट अ क्लास. Just read this information. Just read this, what it says. If your school or university has G Suite account, you can go ahead. So in this case, Google is saying that if you have a G Suite account, तो आप इसमें जा सकते हैं. अगर नहीं है तो आप स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जा सकते, पर्सनल लेवल पे जा सकते हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस अकाउंट. आई एम गोइंग टू गो टू माय DB account, which is a G Suite account, and I'll start from here. See, this is my G Suite account. ये मेरा कॉलेज का अकाउंट है. मैं यहाँ पर same thing, same interface. I'm going to create a class. Okay. So let's give name to our class. Let me call it BSc first year. Okay. मेरे को इसको section का नाम देना. Let's say I call it A, and let me call it Python programming. Or the subject is Introduction to Python Programming. Another thing, I will look at the chat a little later. Let me just complete a small section, then I will go back to the chat. If optionally, you can give a room number. Let's say the room number is N7. Okay, I'm going to create a class. Now, when I say create a class, it creates the whole infrastructure. I take whole infrastructure in the terms, what all objects are needed, what all linkages are needed. It all creates that. So it takes just a few moments. Though कुछ seconds लगते हैं class को create करने के लिए. देखिए अब ये class create हो गई है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज हाउ द क्लास लुक्स लाइक. अब मैं अगर दोबारा आती हूँ सपोज इस पे, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टू इट, नेक्स्ट टाइम इफ आई कम टू माय
classroom. I will find this class here. You can see this class. Right now, this is the name I given. There are no students enrolled. There is no class without a student. So the first thing which we are going to do is add students. सबसे पहले हम students add करेंगे. ठीक है, स्टूडेंट्स कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट टैब खोल लूंगी और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी स्टूडेंट्स कैसे ऐड करना है. तो हम यहाँ चलते हैं, इसको एक्सपैंड किया. हम ये थीम चेंज कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं. देखिए ये इसका इंटरफेस है. दिस इज द बेसिक इंटरफेस. तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस क्लास के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, 4 क्लासेस, 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं. स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स. यहाँ से शुरू करते हैं. पीपल मीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. मोस्टली क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और को टीचर्स होते हैं. तो पीपल के अंदर हम स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं और को टीचर्स ऐड कर सकते हैं. क्लास वर्क में हम असाइनमेंट, नोट्स, क्विजेस एक्सेट्रा पोस्ट कर सकते हैं. स्ट्रीम इज फॉर कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स को हमें कुछ कहना है, कुछ कमेंट पोस्ट करना है, कुछ अनाउंसमेंट करनी है, वो हम यहाँ पर करेंगे. ग्रेड्स इज फॉर देयर, जो भी हम मार्क करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पीपल. ओके, सो यहाँ पर टीचर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ऐड करेंगे. लेट्स ऐड स्टूडेंट्स. नाउ देयर आर 2 वेज टू ऐड स्टूडेंट्स. एक तो मैं यहाँ पर ईमेल से ऐड कर सकती हूँ. मैं स्टूडेंट को ईमेल कर सकती हूँ और उसके ईमेल बॉक्स में इनवाइट चला जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट ऐड हो जाएगा. आई विल शो यू दैट. द अदर वे इज, आई एम गोइंग टू शो यू द अदर वे फर्स्ट. इफ यू सी देयर इज अ कोड हियर. अब देख रहे हैं ये क्लास कोड है. ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ब्राउजर पे जाके classroom.google.com टाइप करेगा और ज्वाइन ए क्लास करेगा, ये वाला कोड एंटर करेगा. लेट्स सी दैट. अब मैं ये वाला जो टैब है, पहला वाला, ये टीचर का टैब है और ये स्टूडेंट का टैब है. सो लेट मी सी. देखिए मैं अपने पर्सनल अकाउंट से जाती हूँ. ठीक है, पर्सनल अकाउंट में मैं जाती हूँ, classroom.google.com. Let me just set up the class and then we will start working on the objects one by one. Join a class. I'm joining a class. यहाँ गए, ये टीचर कोड दे देगा स्टूडेंट को. किसी भी कम्युनिकेशन मेथड से Ctrl+C. You just have to join a class once. बार बार नहीं करना पड़ेगा ये. ठीक है, ज्वाइन. जैसे हमने मूडल में देखा था, स्टूडेंट व्यू और टीचर व्यू, द सेम थिंग. जस्ट सी द डिफरेंस. ये टीचर व्यू है. अब गूगल क्लासरूम में सेम इंटरफेस बनाया हुआ है. दे हैव जस्ट फिल्टर्ड ग्रेड्स पार्ट फॉर द स्टूडेंट व्यू. ये टीचर व्यू है 1 2 3 4 और ये जो है ये स्टूडेंट व्यू है 1 2 3. और कुछ स्टूडेंट सेटिंग्स वगैरह नहीं कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का थीम चेंज करने का कोई स्कोप नहीं है, अपलोड फोटो करने का कोई स्कोप नहीं है. गोइंग बैक टू टीचर, I can change this. Let me change the theme. They have about 80 or 100 themes. Suppose I want this theme. Select class theme. Okay, theme is changed. Now if I go to the student view and refresh, background refresh अपने आप भी हो जाता है कुछ seconds में, but you can force refresh. Okay, so this is changed. Now this student has joined the class. पहले हमने देखा था पीपल के अंदर एक भी स्टूडेंट नहीं था. नाउ यू सी दिस इज ज्योति त्रिवेदी व्हिच इज माय पर्सनल अकाउंट tjyoti70. आई विल ऐड अनदर स्टूडेंट नाउ. लेट्स ऐड दिस स्टूडेंट टू. ये मैंने अकाउंट्स क्रिएट करे हुए हैं. दे आर नॉन G Suite अकाउंट्स. G Suite अकाउंट में एडवांटेज क्या होता है, आई टेल यू व्हेन वी कम टू ग्रेडिंग.
again we will make the student join the class. ओके, एक और स्टूडेंट को ज्वाइन कराते हैं क्लास. स्टूडेंट स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2. Student 1. ओके, अगेन जॉइन द क्लास. वेरी सिंपल इंटरफेस, कोई क्लटरिंग नहीं है शुरू में, खाली एक ये प्लस पे प्रेस करना है एंड यू जॉइन द क्लास. ओके, सो ये जो पहले वाला है ये जो है टीचर का टैब है, बाकी सब सेम है. यहाँ पर देखने में सब सेम लगता है ऊपर से, बट वी जस्ट रिमेंबर. नाउ यू लुक एट पीपल हियर. देयर विल बी 3 स्टूडेंट्स हियर. तीन स्टूडेंट्स आ गए. मुझे को टीचर ऐड करना है. लेट मी इनवाइट राखी. शी इज माय कलीग इन द डिपार्टमेंट. आई एम गोइंग टू टाइप हर ईमेल. आई एम गोइंग टू इनवाइट हर. अब इनको ईमेल चली जाएगी और वो एक्सेप्ट करेंगी तो वो यहाँ पे को टीचर बन जाएंगी. को टीचर क्या क्या कर सकता है, लेट्स सी. अभी इनवाइटेड है, शी हैज नॉट एक्सेप्टेड इट. ठीक है, तो को टीचर वो सब कुछ कर सकता है जो टीचर कर सकता है, एक्सेप्ट को टीचर कैन नॉट डिलीट द क्लास. मुझे अगर ये क्लास डिलीट करनी है तो खाली मैं ही डिलीट कर सकती हूँ, को टीचर नहीं कर सकता. लेकिन को टीचर पूरे असाइनमेंट पोस्ट कर सकता है, ग्रेडिंग कर सकता है, कमेंट्स पोस्ट कर सकता है. को टीचर को वो सारी प्रिविलेजेस है जो टीचर की प्रिविलेजेस है. ओके, so this is the first part I wanted to discuss. Now what are the actions we can do on students? Look here, these are the actions which we can do on students. This is for selecting all students. Suppose मुझे इस स्टूडेंट को रिमूव करना है. I can remove the student, mute the student. Mute ये स्पीकर से नहीं होगा. म्यूट का मतलब है ये स्टूडेंट इस स्ट्रीम्स पे कोई कमेंट्स या कोई पोस्ट्स नहीं लिख सकता. राइट, आई एम डिसेबलिंग द पोस्टिंग ऑफ कमेंट्स पोस्ट्स बाय द स्टूडेंट. जब हम स्ट्रीम पे आएंगे हम देखेंगे कि पोस्ट्स और कमेंट्स में क्या डिफरेंस है. ईमेल कर सकते हैं. अच्छा, और जब असाइनमेंट हो जाती है तो ईमेल, यहाँ से भी ईमेल कर सकते हैं. और जब असाइनमेंट से स्टूडेंट सबमिट कर देगा तो यहाँ पे क्लिक करने से हम सारा स्टूडेंट का क्लास वर्क भी देख सकते हैं. दिस इज ऑल वी कैन डू विद स्टूडेंट्स. नाउ G Suite अकाउंट में हम 1000 स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं. एक्चुअली नॉट 1000 स्टूडेंट, इस पेज पे 1000 मेंबर्स हो सकते हैं, को टीचर्स और स्टूडेंट्स मिला के. मैक्सिमम नंबर ऑफ को टीचर्स कैन बी 20. राइट, सो 980 स्टूडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. दिस इज फॉर द G Suite अकाउंट. नाउ आई एम गोइंग टू कम बैक टू द मेन पेज. लेट मी सी इफ देयर इज समथिंग ऑन द चैट बॉक्स. Okay, I hope my screen is visible, right? Somebody wrote screen is not visible. Okay, so let's come to the streams now. Actually, before that, let's come here. ये देखिए, this is the main menu page here. This is what we are going to discuss right now. यहाँ पर ये class आ गई है मेरी. Now suppose I want to archive this class. अगर मुझे ये क्लास नहीं चाहिए तो मैं इसको आर्काइव कर सकती हूँ. इसको आर्काइव करने के लिए करके ये यहाँ आ जाएगी. Let's go to the settings first. ये प्रोफाइल पिक्चर है. I can change my profile picture if I want to. Now this is important section. This is an important section. Email notification. First of all, मैं इसको पूरा बंद कर रही हूँ. अभी मैंने इसको पूरा ऑफ कर दिया है. पूरी ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ हो गई है. किसी टीचर को ईमेल नहीं जाएगा, स्टूडेंट को नहीं जाएगा. There is something on the chat.
Now let's switch it on and discuss what are these notifications. Let's see what are these notifications now. There are two classes of notifications here, one for the students and the other for the teachers. So इसको देखते हैं comments on your post. अगर ये वाला on है तो students या को टीचर्स मेरे पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं. अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो मुझे उसकी ईमेल नहीं आएगी. Similarly, मैं सब कुछ ऑफ कर सकती हूँ. अगर प्राइवेट वर्क, आई कैन गिव प्राइवेट कमेंट्स आल्सो टू स्टूडेंट्स. वी जस्ट सी हियर. नाउ आई कैन, जो मेरा इसमें से मेरे को अप्रोप्रिएट लगेगा वो मैं ऑन करूंगी, जो नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे. अब क्या होता है कि अगर ये सारा कुछ जो है, अगर ये सारे ऑन होते हैं तो ईमेल बहुत क्लटर्ड हो जाती है. ईमेल पे ईमेल आती रहती है. नाउ क्लास नोटिफिकेशंस. नाउ दिस इज, यहाँ पर मेरे को क्लासेस दिख जाएंगी जितनी है यहाँ पर. राइट नाउ आई जस्ट हैव वन क्लास. So let me add another class. Let me add another class here. And go back to notifications. Let's go back to notifications. It's still creating. It takes few minutes. अब हम notifications पे जाते हैं. और अगर मैं यहाँ क्लासेस देखिए, अब देखिए मेरे को दो क्लासेस दिखे हैं. इसकी मैं थीम चेंज कर देती हूँ just to differentiate. जो लास्ट थीम होती है वही ये डिफॉल्ट चूज कर लेता है. लेट्स डू दिस वन. Let's go to notifications now. अब देखते हैं हम अपनी मर्जी से क्लास के लिए नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं. इफ आई डोंट वांट नोटिफिकेशंस फॉर दिस क्लास, आई विल स्विच इट ऑफ. अगर मुझे दोनों के लिए नहीं चाहिए, मैं ऑफ कर दूंगी. और यहाँ पर हम नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं. इफ आई स्विच दिस ऑफ, कोई भी नोटिफिकेशन वैलिड नहीं रहेगी. सो इन दिस वे इट इज प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ ग्रैन्युलैरिटी कि आपको सारी नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है, कुछ ऑफ करनी है, या आई मीन वॉट एवर वे यू वांट. जैसे भी आपको नोटिफिकेशंस का चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं. ओके. Let's start working on a class now. Let's start working on this class which has 3 students. अब हम यहाँ पे मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ. Share something with your class. So let's say this is my first post. Alright, and I'm going to post it. Now if I click here, ये immediately post हो जाएगी. इसको मैं 3 ऑप्शन है यहाँ पे. मैं इसको immediately post कर सकती हूँ, शेड्यूल कर सकती हूँ, सेव ड्राफ्ट कर सकती हूँ. सेव ड्राफ्ट मीन्स मैं मैन्युअली फिर से कभी भी पोस्ट करूंगी. शेड्यूल मीन्स दैट आई कैन शेड्यूल इट फॉर टुमारो. इफ आई क्लिक ऑन शेड्यूल, आई विल गेट अ कैलेंडर, सो आई कैन शेड्यूल इट फॉर टुमारो. इफ आई वांट टू पोस्ट इट राइट नाउ, आई विल जस्ट क्लिक पोस्ट. ये टीचर था, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3. लेट्स गो टू द स्टूडेंट्स and refresh. Students will be able to see my post. Okay. I'm reducing the resolution of my screen because I have a small laptop, so it's little. Look at this. This is my post. All right, this is a student. Now, अब ये student क्या कर सकता है? Student post का reply कर सकता है. Suppose ये student है, इसने reply करा, seeing the post. Right? Which student is this? This is Jyoti student. Jyoti Trivedi responding. Right? My personal account. Okay. If I come back to the teacher screen, I will see the comment here. Just let it refresh. Okay. You see here, ये comment कर दिया. This is the teacher. This is the 2 student. I will make another student comment on it. Let's say understood.
You click here to post it. So I go back to the teacher screen now, and we'll see the other student screens also. स्टूडेंट 2 has अब ये जो कमेंट्स हैं ये सारे कोलैप्स हो गए हैं. आई वांट टू सी ऑल द कमेंट्स. आई जस्ट क्लिक ऑन कमेंट्स एंड सी हियर सारे स्टूडेंट्स को सबके कमेंट्स दिखेंगे. ये से स्ट्रीम हैज बीन अपडेटेड. आई जस्ट क्लिक ऑन शो हियर or refresh whatever this is the comment. Suppose I want that this particular student should not be able to post. मैं नहीं चाहती कि ये स्टूडेंट कमेंट पोस्ट करे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे. ये यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे एंड लुक एट दीज सेटिंग्स नाउ. ये सेटिंग्स हैं स्टूडेंट से कम्युनिकेशंस रिस्ट्रिक्ट करने की. क्लास कोड ये है, इसको कुछ नहीं करना. स्ट्रीम, दीज आर द सेटिंग्स फॉर स्ट्रीम, दीज आर द सेटिंग्स फॉर क्लास वर्क. So stream, look at the three options here. Students can post and comment. Student can only comment. Only teachers can post and comment. Let's first understand the difference between post and comment. What is the difference between post and comment? Let's see that. I'm going back to the teacher screen now. You see here, this is a post. Comment जो है उसमें हम खाली टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं. ओनली टेक्स्ट कैन बी पोस्टेड. वेयरएज इसके अंदर, पोस्ट के अंदर, आई कैन अटैच फाइल्स ऑल्सो. आई कैन से प्लीज सी द अनाउंसमेंट फाइल. I can attach a file here. So I can attach from a drive, I can copy a link, I can give a YouTube link, and let me attach a file here. I can attach a file here. Let's see which one should I attach. Let's say मैं syllabus attach कर रही हूँ. Upload. Okay, this has been uploaded, but अभी ये कमिट नहीं हुई है ट्रांजैक्शन. मुझे इसको पोस्ट करना है. इसको भी मैं शेड्यूल कर सकती हूँ, ड्राफ्ट कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ. लेट मी जस्ट पोस्ट इट हियर. So all the students will be able to see this. Let's start with the third student and refresh. Students will be able to see this post. Right? This is the announcement file. You can just open it. Okay. So I was going to explain the difference between post and comment. So I just said that post is something much more than just textual data. Anything you can write here, you can attach a file, you can give a link. Yes, just give me a moment, I will unmute you. Monica, can you unmute Aarti? She wants to say something. Ma'am? Can you unmute Aarti? She wants to, I think she raised her hand. I'll continue. So this was the post. Now you can reuse the post. Suppose मुझे दोबारा post use करनी है ये. I don't want to, attach it again. I can reuse it from here. All right. It will load all the posts from all the classes, and you can. It's a bit slow because we are connecting to the server, and I know I have some network issues also today. Please do bear with me. It's a bit slow today.
I can come back to it. Let it load. I can come back to it. Okay. So I was on settings and I was going to tell you the restriction of communication from student side. तो अगर मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट कुछ पोस्ट ना करें, खाली कमेंट करें, तो आई विल सेलेक्ट दिस दैट स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट. अगर मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स पोस्ट भी करें, कमेंट भी करें, तो ये सिलेक्शन होगी. और अगर मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ना कमेंट करें ना पोस्ट करें, तो ये सिलेक्शन होगी. Suppose I want to unmute, I don't want students to post or comment, right? So I will click this. Now, and of course I have to save it. Now let's go to this particular student. We saw here this particular student had put a, student 2 had put a comment, understood? Now let's go here and let's see if this student can still comment. No, comment का section ही चला गया. ठीक है, पोस्ट का भी सेक्शन नहीं है यहाँ पे, कमेंट का भी सेक्शन नहीं है. आई एम गोइंग टू गो बैक टू द सेटिंग्स एंड शो यू वंस अगेन. Only teachers can post and comment. I'm going to give some liberty to the students. Students can only comment, right? Again, save. Let's go back to student 2. Refresh. See, स्टूडेंट को कमेंट का सेक्शन वापस आ गया. स्टूडेंट को कमेंट का सेक्शन वापस आ गया. लेट द स्टूडेंट राइट माय नेक्स्ट कमेंट. अगर यहाँ कमेंट करेगा, दिस मीन्स द स्टूडेंट इज कमेंटिंग ऑन माय दिस पर्टिकुलर पोस्ट, राइट? माय नेक्स्ट कमेंट. नाउ इनको भी एक कमेंट पोस्ट करा देते हैं. लेट्स रिफ्रेश, बिकॉज वो रिफ्रेश नहीं हुआ इनका स्क्रीन. Okay. First comment by student 1. Okay. Let's go back to the teacher view. You can recognize the teacher view by this. ये teacher view का कलर है ये मेरा. देखिए यहाँ पे सब आ गया. First comment by student 1. Okay. अच्छा, अगर अब मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, खाली स्टूडेंट 1 नहीं कर पाए, उसके लिए मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा. दिस इज स्टूडेंट वाइज सेटिंग. आई डोंट वांट स्टूडेंट 1 टू कमेंट, स्टूडेंट 2 शुड बी एबल टू कमेंट. सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट. आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट. या तो मैं यहाँ से कर दूंगी म्यूट, या फिर मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगी. ओके, अभी यहाँ पर, सॉरी, इट्स ओनली फ्रॉम हियर. आई थॉट इट वाज फ्रॉम हियर आल्सो. सो आई विल म्यूट द स्टूडेंट, राइट? And mute. But students mute हो गया, student 1 mute हो गया. That doesn't mean the student cannot submit his or her classwork. So let's see. Let's go back to student 1. This is student 1. This color is student 1. This is student 2. This is my personal account. Okay. So I'm on student 1. Right. Let's refresh. देखते हैं student 1 comment कर सकता है, नहीं कर सकता. गॉन. इसके पास है ही नहीं कमेंट का सेक्शन. स्टूडेंट 2 का देखते हैं. रिफ्रेश करके देख लेते हैं. यहाँ पर कुछ नहीं गड़बड़ हुई. स्टूडेंट 2 कैन कमेंट, राइट? स्टूडेंट 2 कैन कमेंट, राइट? सो कमिंग बैक टू स्क्रीन, आई जस्ट डू अ रिकैप ऑफ द कम्युनिकेशन. ये पोस्ट है और ये कमेंट है. लेट्स कम बैक टू द कम्युनिकेशन. Stream is a class of object where students and teachers can communicate. Besides classwork, of course, that is for assignment and quiz. Stream में हम दो तरह के, दो types of चीजें post कर सकते हैं. एक को बोलते हैं post, दूसरे को बोलते हैं comments. Comments is just textual data. Post is you can attach a YouTube link, you can share a file, you can write text, any kind of file you can share. So you can, students can comment on that. If you want that students should not be able to write posts, then you go to the settings and you select appropriately. There are 3 options here. Students can only comment. If you want to give all the liberty to the students, students can post and comment. अगर आप चाहते हैं कि कोई student ना comment लिखे ना post लिखे, खाली teacher के comment और post पढ़े, तो ये select करेंगे. ठीक है? ये तो हुआ पूरी क्लास के लिए settings. अगर मुझे student wise setting करनी है, if I want settings for individual student, not en masse for class,
तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट को जाके सेलेक्ट करूंगी. नाउ आई वांट टू अनम्यूट दिस स्टूडेंट. आई एम गोइंग टू अनम्यूट दिस स्टूडेंट एंड दिस स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट पोस्ट टू मी. सो लेट्स गो बैक. इसके बाद कमेंटिंग का सेक्शन वापस आ जाएगा अभी. Okay, now this is my post. I can delete, okay, this is copying the link. Let's come to comments. This is the comment by students. The teacher can delete student comments, whereas the students can edit their comments or delete their comments. Okay. Let's go here for class comments. Okay, this is the comment by student 2. ये दूसरे के नहीं कर सकता. ये देखिए इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं आ रही है. ये student 2 है. ये अपने comment delete कर सकता है. Sorry, they cannot edit it. Teacher can edit the comment and student can delete the comment. Right? अच्छा, आप post भी delete कर सकते हैं. आप post delete कर सकते हैं. ये वाली suppose मैं यहाँ जाके अपनी post delete करती हूँ. But I have to be careful about the settings. Now, if you look here, there's a setting about deleted posts. Okay. Show deleted items. Only teachers can view deleted items. Students कोई भी deleted item नहीं देख सकते. अगर मैं इसको click करती हूँ और save करती हूँ, and if I delete my post, I will be able to see it. So let's go here. Go to the stream. And if I delete this post, I will be able to see it. If अगर मेरी वो setting off है, तो मैं उसको नहीं देख पाऊँगी. Okay. So I'm going to just look at the chat box if there is anything I need to answer regarding that. Okay. I'm taking the questions from chat box. The first question is, if there are 50 students, we have to open 50 browsers. Yes and no. You don't have to open 50 browsers. आपको नहीं 50 browsers करने हैं. आप समझिए ये डिफरेंट बच्चे बैठे हुए हैं अलग अलग जगह. ये अपने कंप्यूटर पे बैठा है, ये अपने कंप्यूटर पे है, या फोन पे बैठा हुआ है, ये मोबाइल फोन पे भी कर सकता है, ये अपने बैठा हुआ है, ये अपने बैठा हुआ है. मुझे यहाँ इसीलिए खोलना पड़ा क्योंकि मुझे स्टूडेंट व्यू भी आपको दिखानी है. तो आप अगर टीचर हैं तो आपको खाली एक ही ब्राउजर खोलना है. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चंस. ये स्टूडेंट है, आप समझिए ये अलग अलग वर्क स्टेशन है, अलग अलग बच्चे अपने अपने घर में बैठे हुए हैं. ठीक है. What is the major difference between Moodle and Google Classroom? To switch over to Moodle if teacher is comfortable with Google Classroom. Yes, Ruby ma'am, as I said, Google is a poor cousin of Moodle. जो Moodle है, ये Google जो उसका है बहुत छोटा सा सबसेट है. Moodle में बहुत सारे फीचर्स हैं. अभी जब हम असाइनमेंट पे आएंगे तो हम देखेंगे असाइनमेंट में Moodle में हमने कितने सारे फीचर्स देखे थे, और यहाँ पे बहुत लिमिटेड फीचर्स है. बट Google is expanding. तो इफ द टीचर इज कंफर्टेबल और आपको लगता है कि आपका काम गूगल क्लासरूम से हो रहा है, फाइन, लाइक पर्सनल चॉइस है ये. बट अगर आपको किसी स्टेज पर लगता है कि आपका काम गूगल क्लासरूम से नहीं चल रहा, तो फिर यू हैव टू स्विच ऑन टू Moodle. और हो सकता है गूगल भी तब तक अपना इसको अपग्रेड कर ले. जैसे अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, दे आर कमिंग आउट विद न्यू फीचर्स. टॉप ऑफ माई हेड आई डोंट रिमेम्बर, अभी याद आ जाएगा बता दूंगी मैं आपको. Okay, any other questions regarding the streams, these settings regarding notifications and the settings in here? I've discussed few settings. I've discussed the settings regarding stream here. Okay, so let's come to Google Meet. Now Google Meet is integrated with Google Classroom. आप यहाँ से Google Meet invoke कर सकते हैं. You don't have to open another browser for that. यहीं से आप Google Meet invoke कर सकते हैं. Right? You can just generate a Google Meet link and students will be connected with you. Okay, let's come to classwork now. Let's do some classwork for students. All right. So I'm coming here. The students, as I just said, this is a student, this is a student. They just see three sections. So student classwork section abhi khali hai. There's nothing here. I'm going back to the teacher classwork section. Create. I'm going to, मैं अपने इसको टॉपिक्स में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, और उसके बाद हम एक असाइनमेंट, एक क्विज, एक क्वेश्चन, एक मटेरियल पोस्ट करेंगे. So let's create topic 1.
going to create another topic, topic 2. Let me post some material first. पहले स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा, आप मटेरियल स्ट्रीम में भी पोस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी मटेरियल पोस्ट कर सकते हैं, राइट? और क्लास वर्क में भी मटेरियल पोस्ट करते हैं. सपोज मुझे टॉपिक वाइज मटेरियल पोस्ट करना है, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मटेरियल और मेरे पास ये रेडी है, मेरी फाइल बनी हुई है. तो आई एम गोइंग टू अटैच अ फाइल हियर and I have some files ready. Let me attach a file here. Let's say this is my material for this class, right? So I'm going to upload this. Let's attach a material for topic 2 also. Let's write a title. So I'm going to post it. It's just saving. अब पोस्ट में आप सबको पोस्ट कर सकते हैं या अलग अलग लोगों को भी पोस्ट कर सकते हैं. असाइनमेंट में भी हम देखेंगे. ओके. So SQL queries, I'm going to drag it and move it to topic 2. Let's create another topic. Let's create another material and add a file. Let's say Python. Python programming examples. So please use PyCharm. So I'm giving some instructions. मैं फाइल पे आ रही हूँ. I'll select the file here and let's see if I have something of Python. Python का है नहीं इसमें, ऐसे ही डाल देती हूँ कुछ. ये डाल देती हूँ सब कुछ इसमें. ओके, अपलोड. अभी मैंने पहले उसको टॉपिक में डालना सपोज भूल जाते हैं तो आप वहां से ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, राइट? आई कैन असाइन इट टू टॉपिक 1. ओके. और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ये आप सब स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा मटेरियल मांगा उसको असाइन कर सकते हैं. सपोज आई जस्ट वांट टू गिव इट टू वन स्टूडेंट, ओनली वन स्टूडेंट विल सी, राइट? लेट्स से आई वांट टू गिव दिस स्टूडेंट दिस मटेरियल ओनली टू दिस स्टूडेंट, सो आई विल गिव इट ओनली टू दिस स्टूडेंट. ओके. So let's see what the students see now. And post. Okay, these are the 3 students. अब देखते हैं इनको क्लास वर्क में क्या क्या मिला. इनको खाली 1 मिला क्योंकि मैंने एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को पोस्ट किया था. इनको खाली 1 मिला, इनके लिए 2 किए थे. So इनका क्लास वर्क देखते हैं. Okay, I think कुछ उसमें मिस हो गया. I will post it again. Python programming. Let's see ये किसको assign हुआ है. Student 1 को assign हुआ है. इनको देखना चाहिए. Let's refresh. तो देखिए, तो आप ये हर लेवल पे ग्रैन्युलरिटी अलाउ करता है गूगल क्लासरूम. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट पोस्टिंग द मटेरियल. नाउ लेट्स पोस्ट एन असाइनमेंट एंड वी विल चेक एन असाइनमेंट. ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लास वर्क अगेन एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट एन असाइनमेंट. सो लेट्स से असाइनमेंट 1. Any appropriate instructions you want to post? I'm going to again add a file. We'll see how to create a quiz also. So I'm going to select my file from here and let's say this is assignment 1. Let's upload it. Okay,
सो अगेन इसको मैं सारे स्टूडेंट्स को असाइन कर देती हूँ. पॉइंट्स यहाँ पे ड्यू डेट मैं एक लगा देती हूँ. लेट्स पुट अ ड्यू डेट. ड्यू डेट के बाद अगर स्टूडेंट सबमिट करने को आएगा तो उसको मैसेज आ जाएगा दैट यू आर लेट. फिर टीचर यहाँ से चेंज करके उसको सबमिशन दोबारा अलाउ कर सकता है. लेट्स पुट द ड्यू डेट फॉर 1st और 2nd of July. If you want, you can put a time optional. Let's say 11:59. And this is my due date for this. Now, let's अब ओरिजिनलिटी पे देखते हैं. यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या हो सकता है. अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ ओरिजिनलिटी को, you can enable originality reports only 3 assignments per class. Google Classroom ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि हम खाली 3 असाइनमेंट्स को एक क्लास में ओरिजिनलिटी के लिए चेक कर सकते हैं. सपोज मेरे को इसको ओरिजिनलिटी के लिए चेक करना है तो मैं इसको चेक मार्क लगा दूंगी. और स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट सबमिट करेगा, जो हम अभी देखेंगे, स्टूडेंट भी ओरिजिनलिटी के लिए चेक कर सकता है और टीचर जब यहाँ पे मार्क करेगा तब भी दिख जाएगा. साथ में हम यहाँ पे रूब्रिक भी ऐड कर सकते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है. कि सपोज मुझे लिखना है इंट्रोडक्शन में मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दूँ. इट शुड बी एटलीस्ट 200 वर्ड्स, राइट. तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स डाल दूंगी इंट्रोडक्शन को. दिस इज हाउ यू कैन ऐड रूब्रिक. यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन प्ले अराउंड विद इट लेटर. So let's go to originality first. Now I'm assigning this assignment, right? Okay, let's go to student 2. सबसे पहले तो यहाँ पे उसके असाइनमेंट स्क्रीन पे उसके मैसेज आ जाएगा. ये देखिए, can you see my screen? There's a notification here. There's an automatically whenever you post an assignment, it is automatically put in here. This will be true for all the students, right? So let's come to classwork, and this is assignment which is posted. Student 1, student 2 को हमने material link दिया था topic 1 का. Assignment पे आते हैं. Student will view the assignment, and let's say student को हम ये स्टूडेंट साइड हम देख रहे हैं. ये देखिए, ये वाली स्टूडेंट साइड है और ये टीचर है. So that's how we can recognize. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट कैसे सबमिट करते हैं. लेट्स ऐड और क्रिएट. लेट्स से मैं गूगल डॉक बना रही हूँ. अगर आपके पास रेडी फाइल है तो आप अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल डॉक बना सकते हैं. और मैंने क्या किया, मैंने नेट से कॉपी कर दिया. तो इसको देखते हैं. ये मैंने यहाँ से कॉपी करा, यहाँ डाल दिया. Somehow I'm not able to paste, right? Okay. और थोड़ा ले लेते हैं नेट से. विकिपीडिया से उठा लेते हैं. ओके, यहाँ से कर लिया. ओके, अब मैं इसको सबमिट कर रही हूँ. Let's go to classwork. Sorry, I forgot to submit. Okay, I forgot it. Okay, so look here. I don't have to do it again. I think I missed. I'm going to close this browser, one of the browsers. So ये टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है. So I'm going to close this. Look here. यहाँ पर लिखा ना ओरिजिनलिटी रिपोर्ट्स. ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एज अ टीचर मैंने वहाँ पे ओरिजिनलिटी ऑप्शन को चेक किया था. अगर मैं उसको चेक नहीं करती
तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन नहीं आता, ठीक है। अब एज अ स्टूडेंट आई कैन रन द ओरिजिनलिटी रिपोर्ट, इट विल रन एंड लेट्स सी what answer does it give. Okay, it's running the originality report. Let's view. Okay, so one flagged message. ये जो हाईलाइट हो गया है ये बता रहा है कि इंटरनेट से लिया है। आप परसेंटेज भी देख सकते हैं, 100% फ्लैग कंटेंट काउंट में आपके मैसेजेस आ जाएंगे पैराग्राफ वाइज, ठीक है। अब सपोज स्टूडेंट कहता है कोई नहीं मुझे तो ये सबमिट करना ही है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट केस। टर्न इन मीन्स यू विल सबमिट। जब तक स्टूडेंट टर्न इन नहीं करेगा टीचर को असाइनमेंट नहीं दिखेगा। हम पहले यहाँ पर आते हैं, क्लास वर्क देखते हैं, यहाँ पर असाइनमेंट 1 को देखते हैं कैसे दिख रहा है। Turned in आप ये देखिए, turned in means none of those students has submitted. 3 students were there in the class, all of them were assigned. अभी किसी ने भी turn नहीं किया। Coming back to this particular student, let's turn in. Okay, if the student wants, they can unsubmit the assignment. अब यहाँ पर आते हैं, let's see how many have, let me refresh it. It takes few seconds to get refreshed on its own. Assignment 1, let's click here. Turned in 1, right? 1 student has turned in the assignment. 2 को assigned है, 3 students थे, 1 ने वापस दे दिया है, 2 ने अभी वापस दे दी। And let's view the assignment. ये turned in है, इनका कोई अभी आंसर नहीं आया, so let's check this one. Okay, क्योंकि ओरिजिनलिटी वहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे कि look at this one flag passage is there. If I click on this, it's going to tell me what was the issue. तो ये यहीं पे पॉइंट करेगा अभी, one flag message is there. ठीक है, this is the originality report. कि यहाँ पर ये कॉपी है। Similarly, you can toggle here from percentage to the count. Okay, so this is how you can check. अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं, सब ठीक है। अगर हमको मार्क करनी है तो हम यहाँ पे ग्रेड दे सकते हैं स्टूडेंट को। भूल जाता है कि ओरिजिनलिटी हमने लगाई थी। ओके, तो हम इसको ग्रेड दे देते हैं। लेट्स से मैंने 89 ग्रेड दे दिया इसको। प्राइवेट कमेंट दे दिया, वेल डन, प्लीज फॉरगेट द ओरिजिनलिटी। ऑलराइट, एंड अगर मुझे यहाँ पे कुछ हाईलाइट करना है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर सकती हूँ। यू कैन गो हियर एंड यू कैन हाईलाइट, you know, whatever you want to do, you can write here. आप comment लिख सकते हैं यहाँ पे, you can just you know, add your comments here. Okay, so this is how you can do, and you can post. ये जो private comment है ये खाली इस student को दिखेगा। अभी ये student को assignment return नहीं हो रहा है। I am just going to go back and show you the student. अभी यहाँ पर अगर हम student पे आ रहे हैं वापस, let's go back to the student. Student 1 ने ये submit करी थी, ठीक है। स्टूडेंट को अपने ग्रेड्स नहीं दिख रहे इसमें, राइट। स्टूडेंट व्यू करेगा, इसको ग्रेड्स नहीं दिख रहे, अभी टोटल पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जब रिटर्न करूंगी यहाँ पर, I have to return it, right? Okay, so let's close this. Now I go back to this particular student and refresh. The student should be able to see the grades in a moment. Okay, the student sees the grade और यहाँ पे comments भी दिख जाएंगे, private comments. Let's come back to the teacher now. Turned in, इसमें आ जाएगा graded, और हम grade, अब हम grades पे जाते हैं। Okay, 1 graded, 2 assigned. कोई भी ऐसी assignment नहीं है जो turned in हो, submitted हो और check नहीं हुई। Let's go back to grades now. Something has come in grades, right? This is first assignment which was submitted. It is coming in grades. Okay. अच्छा, अब क्या है कि
अगर टीचर चाहे तो अपनी वेबसाइट भी बना सकता है और ये असाइनमेंट या उसको लिंक कर सकता है. आई एम गोइंग टू क्विकली शो यू हाउ वी कैन. लेट मी चेक द चैट बॉक्स फर्स्ट प्लीज. Something. 19 more messages. Okay. Okay, I'm going to take the questions from chat box. How to delete and recover a Google Classroom. If you have archived it, you can retrieve it. If you have deleted it, it has gone from the drive and you will not be able to retrieve it. I'm going to show you where it is stored. Just bear with me 1 minute. Let's close unnecessary browsers. Okay. These are the classes. अगर मैंने इस क्लास को आर्काइव कर दिया है, ठीक है, तो ये आर्काइव सेक्शन में आ जाएगी यहाँ पर, राइट, एंड यू कैन रिस्टोर इट. ऑलराइट. अगर आपने, ये मैंने पहले भी एक आर्काइव करी, अगर आपने डिलीट कर दिया तब नहीं आएगी. लेट्स चेक द ड्राइव. This is BSc second year. Let's check the file now. This is my classroom folder. So these are the classes present right now. अगर मैं डिलीट कर देती हूँ तो अगर ये यहाँ से चला गया फिर रिस्टोर नहीं कर सकते. That was the answer. Second, how do I archive this class? Ruby, I've just answered this. How do I archive this class? And restore करने के लिए यहाँ, अच्छा एक चीज और बता दूँ स्टूडेंट्स के लिए. सपोज किसी स्टूडेंट को कोई क्लास छोड़नी है, सपोज ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे इस क्लास में नहीं रहना, स्टूडेंट कैन ऑल्सो अनएनरोल फ्रॉम क्लास. एक यहाँ पर, ओके लेट्स डू दिस. मैं ये स्टूडेंट नहीं हटाती, मैं आपको दूसरे स्टूडेंट का करके दिखाती हूँ. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा है रिस्टोर पे, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ. I'm just going to get the code for the class. ये जो मैंने स्टूडेंट, ये वाली क्लास मैंने ज्वाइन करी है. अब यहाँ पर पहले आप पीपल देखिए, यहाँ पे कितने लोग हैं. 3 लोग हैं. ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2. अब मैं पर्सनल अकाउंट जो मेरा अनदर पर्सन, आई डोंट वांट टू बी इन दिस क्लास. ओके, मेरे को नहीं करना ये क्लास, तो मैं अनएनरोल कर देती हूँ. राइट, अनएनरोल करने के मेरे को अपनी व्यू में ये नहीं दिखेगा, बट माई फाइल्स विल स्टिल बी देयर ऑन गूगल ड्राइव. अगर अनएनरोल कर दिया, सपोज जैसे जी है, लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, इफ आई रिफ्रेश दिस स्टूडेंट वुड हैव गॉन फ्रॉम हियर नाउ. Okay, so that was about archiving a class from teacher side, restoring the class and deleting the class. This means it's gone. Okay, is it possible? Yes, it is possible to operate from mobile only. Ma'am, can we take a quiz using Google Forms? Yes, yes, you can take a quiz. That's the next thing I'm going to do. You can take a quiz and you can auto grade it if it is sent to students within the domain. I'm going to do that. Okay. कितने विद्यार्थी इसमें जोड़ सकते हैं? छोटूराम जी, पीपल में यहाँ पर जी स्वीट अकाउंट जो हमारे यहाँ पर इस सेक्शन में टोटल 1000 लोग हो सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम 20 कोर टीचर्स हो सकते हैं. 20 टीचर्स मतलब 19 कोर टीचर, 1 टीचर, इसका मतलब 980 स्टूडेंट्स इसमें हम लगा सकते हैं. Moodle is more expensive and complicated. Yes, it is. Moodle is a smartphone and Google is हमारे पुराने जमाने का सेल फोन. So archiving our class, yes. Okay. After deletion, the recovery is not possible. Your admin, your G Suite admin might have something in the trash which he can recover,
तो लेट मी सी, अगर मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइव में, अगर वहां मिल जाएगा तो आप कर लेंगे रिकवर। एक मिनट। नॉर्मली ट्रैश में 30 डेज तक रहता है। अगर सपोज मैं कोई क्लास डिलीट करती हूँ या ड्राइव से सारे जो क्लासेस हैं जो मैंने क्रिएट करी वो क्लासरूम फोल्डर में, क्लासरूम फोल्डर जो है ड्राइव पे, अगर मैं ड्राइव से कुछ भी डिलीट करती हूँ वो ट्रैश में जाता है। अगर ट्रैश में है तो वो आप रिकवर कर सकते हैं, लाइक एनीथिंग फ्रॉम गूगल ड्राइव। अब नॉर्मली आई थिंक ट्रैश की सेटिंग्स इज 30 डेज, इट डिपेंड्स ऑन अ जी सूट एडमिन, उसने क्या सेटिंग्स करके रखी है। Okay. Can student delete? Yes, student can unsubmit the assignment. Yes, student can unsubmit the assignment. I just showed you that from here. Okay. Let's go to the next question. Can we switch from our Google Classroom created from personal account? You mean अगर ये question है उषा का, उषा मैम आप move नहीं कर सकते classroom. पर्सनल अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे मूव नहीं कर सकते। G Suite to G Suite in the same domain may be possible. I haven't tested that, but thinking of it, that may be possible. But personal account to a G Suite account, no, for sure. Usha, yes, if you sync to G Suite account, you can do it. But I don't think you can sync a personal account and a G Suite account. Okay, on Moodle platform, course one created can be used again and again in a scheduled manner. We just need to enroll new student. Yes, we can do the same in Google Classroom. यहाँ से आप सारे स्टूडेंट्स को डिलीट कर दीजिए, अगला आपका सेमेस्टर शुरू हुआ, दूसरे स्टूडेंट्स ऐड कर दीजिए। अच्छा, स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए जरूरी नहीं आपको मैनुअली ऐड करना है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके अगर स्टूडेंट सारे डोमेन में है तो आप फटाफट ABC क्लिक करते जाइए और सारे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट। Okay. If the student posts their assignment in the streaming, then it would show them absent while grading. Yes. जब मैंने Google Classroom यूज करना शुरू किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने पोस्ट कर दिया था स्ट्रीम में, तो ये स्टूडेंट करते हैं। Okay, can we upload a quiz which is developed in Google Form? Yes, definitely we can do that. I'm going to show that. Suppose I have sent my one of the classroom to archive. How do I recover classroom? I just showed you. You go to here and go to archive classes and click here, permanently delete, restore, move, copy, whatever. Move means you can move it to another section. Okay. Okay. Can you repeat the check step? Okay. I will repeat the originality step. Comment, where do we have to? Okay, I'll repeat that. Is there an option to download the assignment submitted by the student? I think so. Originality report is present in G Suite account. Madhu, I can test that for you. I haven't tested. I think G Suite may have originality, but I can confirm that. Download assignment देखना है, the student portals, ये मैंने answer कर दिया. Kindly originality, I'm going to repeat. Phone created class, gave a code, asked student check, but it said no class created. Sarla ma'am, I can test that with you in a moment. I can test that with you. Attendance link please, it was disconnected. Attendance, हाँ attendance जो है वो इसमें ऐसे डायरेक्ट कोई attendance का फीचर नहीं है, बट आप emulate कर सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगी एक ऑप्शन. So I'm going to go over the what again, the originality report again. Okay. Originality report and then create a Google form. All right. Let's create another assignment. I'll just repeat the same assignment. All right. Let's create assignment 2. The file you can also create here. आप यहाँ पर भी Google Docs से create कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अगर आपको ड्राइव के पास पड़ी हुई है, ड्राइव पे पड़ी हुई है, तो यहाँ से लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको create कर देती हूँ. Let's create a Google Doc. Okay, मैं अपना कंप्यूटर साइंस का ही क्वेश्चन लिख देती हूँ. Let's see. Okay, so I'm going to call this assignment 2.
and let's save this. I'm going to post it. I'm going to post it. मैं ये नहीं दिखा रही due date because this all is very straightforward and we can do it. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं. स्टूडेंट्स कैन व्यू अ फाइल, स्टूडेंट कैन एडिट अ फाइल, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट. अगर मैं करती हूँ मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, और जब आप ट्राई करेंगे ड्राइव में जाइए और क्लासरूम में आप देखना जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हुए उतनी इस असाइनमेंट की कॉपी होगी. नॉर्मली जो असाइनमेंट जैसे मैंने पहले दी कि एक स्ट्रेट क्वेश्चन, वी विल से स्टूडेंट कैन व्यू अ फाइल. स्टूडेंट कैन एडिट अ फाइल हम तब देते हैं जब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट फाइल एडिट करें, और वो तभी हो सकती है जब हमारी गूगल ड्राइव पे हो. अच्छा, अभी जो गूगल ड्राइव पे फाइल होगी तो जी सूट के ही स्टूडेंट एडिट कर पाएंगे unless until you have set the permission. So we will look into that. So इसमें अभी मैं खाली student can view a file कर रही हूँ and I will assign. Look here, this is the setting for originality report. I want originality report to be generated, right? So it is saving and I'm going to assign it. Okay. Okay, I kicked off the 2 students. Browser close करने में. I will join in again. Student 1. Just before I go to originality, I'll just show you something in here. स्टूडेंट का जो पीपल सेक्शन है उसमें उनको खाली स्टूडेंट्स दिखते हैं अपने सिवाय, और टीचर्स दिखते हैं. जो इनवाइटेड टीचर्स है वो नहीं दिखते. ठीक है. और जैसे टीचर्स जो है यहाँ पर प्लस साइन था स्टूडेंट ऐड करने का, टीचर ऐड करने का, उनके पास इन्हें दे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड व्यू. सो जो टीचर व्यू है दैट इज अ बिगर व्यू. उसी में से सबसेट ले लिए स्टूडेंट व्यू का. सो व्हाट हैपेंस वेदर यू जॉइन अ क्लास, जो भी आपका रोल है, जैसे स्टूडेंट रोल है और टीचर रोल है. गूगल क्लासरूम में खाली 2 रोल्स है. और जो जैसे मैं बता रही थी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे सकाई है, उसमें बहुत सारे रोल है. स्टूडेंट रोल, टीचर एसोसिएट रोल, एडमिनिस्ट्रेटर रोल, पावर यूजर रोल. पावर यूजर इज रजिस्ट्रार और समथिंग जिसके पास है सब कुछ एक्सेस है. तो इस तरह के रोल्स है. बिकॉज दिस इज अ स्मॉल सिंपल सिस्टम, मिनी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें खाली 2 रोल्स हैं. तो जैसे आप लॉग इन करते हैं उस रोल के हिसाब से आपकी व्यू बन जाती है. कमिंग बैक टू असाइनमेंट ओरिजिनलिटी. So assignment 2 has been posted and we are going to submit. पहले भी यहाँ पर लिखा हुआ है this is for originality check, मतलब इसमें originality check लिखा हुआ है. Click on view assignment, add or create. You can have a file ready on your system or you want to create it. So just to make it quicker, I will create it. Let me copy from the internet. मैं एक और टैब खोल देती हूँ यहाँ पे. अच्छा पैराग्राफ यार से क्वेश्चन मिलेगा. So let's copy from here. Here I write something else. Let's say I would say DBMS is a. All right, let's write like this and let's see what happens. Now I can turn in from here or I can close and submit. यहाँ से भी turn in कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं. तो अगर let's say I want to turn in from here. Oh, did I, just one moment. I think something, I chose the wrong student or something like that. Just give me a moment. Something like that. This is student 1. And okay. Something is not right. I will go over this again. I will go over this part again. I think student 1 is still a student. I did not delete. Let's go back.
Look at people. Yes, student 1 is still responding. So assignment 2, add or create. Okay. And ये देखिए यहाँ पर है originality reports. If I want to check my work for originality, I can correct myself. Right? It is running, so originality report, whatever, I can view it. ये काउंट में आ रहा है 1 फ्लैग परसेंट, इसको नहीं करा, इसी को हाईलाइट करा, ये मैंने खुद ही लिखा था. परसेंटेज में देखते हैं कैसे आते हैं. 81% फ्लैग. ओके, सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट. सपोज आई स्टिल वांट टू गो अहेड एंड सबमिट इट. टर्न कर, मेरे को टर्न इन करनी है इसको, मेरे को आई डोंट बॉदर. ओके, टर्न इन. नाउ वील गो बैक टू द स्टूडेंट्स व्यू, सॉरी टीचर्स व्यू. Okay, there's a question by Santesh sir. What about the originality reports if we have more than 3 students? Sir, originality reports number of students पे नहीं depend करती. G Suite account पे ये है कि आप एक क्लास के लिए 3 असाइनमेंट को originality के लिए चेक कर सकते हो, चाहे 1000 स्टूडेंट्स हो. ठीक है, तो वो जो लिमिट है 3 की, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स के लिए. जैसे मैंने पहली असाइनमेंट करी ओरिजिनलिटी के लिए, सेकेंड को कर रही हूँ, थर्ड को भी कर सकती हूँ, फोर्थ को मुझे नहीं करने देगा. ओके, इफ द असाइनमेंट इज हैंड रिटन, कैन इट बी चेक फॉर प्लेजरिज्म? नो, इट कैन नॉट बी चेक. नॉट विद दिस फीचर. Can we show this originality report to students? Yes, we can show this originality report to students. Okay, so let's come to the teacher's view now. Classwork, student 1. असाइनमेंट 2 किस किस में, अच्छा यहाँ पर भी देख सकते हैं हम. स्टूडेंट 1 ने देखो क्या क्या करा है. ओह, दे हैव रिमूव्ड दिस फीचर. यहाँ पर ना, नहीं यहाँ पर है वो फीचर, अब चेंज हो गया. यहाँ पर से भी देख सकते हैं स्टूडेंट 1 ने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 सबमिट करी. ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं और उधर से भी देख सकते हैं क्लास वर्क से. कम टू असाइनमेंट 2, टर्न इन 1. पहले 3 स्टूडेंट थे, एक निकल गया क्लास से. टर्न इन को देखते हैं, इसको चेक करते हैं. And somebody asked about giving comments. मैं इस पे दिखा दूँगी. यहीं पर आ गया जो ओरिजिनलिटी रिपोर्ट जो वहाँ आई थी ना, जो स्टूडेंट की चेक करने पे आई थी, वो यहाँ पर भी फ्लैश हो गई है. इफ आई वांट टू एक्सपैंड इट, आई कैन सी. मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. बोथ तो ऑप्शंस आ गए, परसेंटेज एंड काउंट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टीचर डिसाइड्स. ओके, अच्छा, और किसी ने पूछा था हाईलाइट के लिए, क्लिक ऑन मोर, यूज दिस. And if you want, you can highlight whatever you want. Okay, and you can write your comments. Let's say there is an option for add a comment. So this is not clear. Okay, so when the students will see their assignment, they will be able to see all this. And let's give 80, 87. Okay, good job. ऑलराइट, यहाँ पे पोस्ट कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया. रिटर्न. अब हम स्टूडेंट 1 पे जाते हैं. लेट्स सी व्हाट स्टूडेंट, हमने प्लेजरिज्म को इग्नोर कर दिया था इससे. स्टूडेंट 1 पे चले जाते हैं. स्टूडेंट 1 असाइनमेंट 2, लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट. आ गया 87. और यहाँ पर पर्सनल कमेंट्स आ गए इसके. ठीक है, गुड जॉब. और यहाँ पर आ जाना चाहिए जो मैंने कमेंट करा है या जो भी हाईलाइट करा है. इट शुड कम है. नो सॉरी, दिस इज द असाइनमेंट. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द वन. यू क्लिक हियर, you should get it. All right, just give me a moment. My net is behaving funny. Just give me a moment. Okay, is it okay about originality report? Can I quickly go over to something else? I will show you how to make a quiz. I'm sorry, there is so much to cover.
but I will see how much I can do. Let's make a quiz now, quickly. Classwork, create, quiz assignment, questions है, आप बड़े आराम से अटेंडेंस ले सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, अटेंडेंस, राइट. और यहाँ पे प्लीज से इफ यू आर प्रेजेंट. शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस दे देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर. ऑप्शन 1 यस क्लिक कर लो. ऑलराइट, यहाँ पे एंड यू कैन जस्ट से आस्क. क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पर आस्क आता है, तो दिस क्वेश्चन विल कम टू द स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन विल कम टू द स्टूडेंट, दे विल आंसर. एंड I closed that section because my net was behaving a little weird. So I'm going to log in again as student 1. ओके, ये देखिए, ये अटेंडेंस का क्वेश्चन आ गया. स्टूडेंट कैन क्लिक हियर, ठीक है, एंड टर्न इन. ऐसे आप कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट टर्न इन हुए. ऐसे स्टूडेंट 2 सारे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, आप काउंट कर सकते हैं कितने लोग क्लास में. दिस इज जस्ट अ वर्क अराउंड, कोई स्ट्रेट मेथड नहीं है, ठीक है. अच्छा, अब हम क्विज कर लेते हैं. क्विज असाइनमेंट, यू कैन क्रिएट अ क्विज, या यहाँ पे ब्लैंक है. अगर यहाँ पर आपने ऐड करना है, आपका क्विज है, तो आप गूगल ड्राइव से ऐड कर देंगे. और मेरे पास कोई क्विज नहीं पड़ा अभी गूगल ड्राइव पे, नहीं तो मैं यहीं पे ब्लैंक क्विज क्रिएट कर देती हूँ. Alright, and I will show you one import grades feature. This one. Let's say what is electrons? I can't think of a question, so let's say how many. It may not be the right question, can't think of anything. Multiple choice कर देते हैं, यहाँ पे option 1 कर देते हैं. Let's say 1, 2, 3, या other option, या none of the above, whatever you want to write. अभी इस पे हमको एक सेटिंग देखनी पड़ेगी. If you see here, restrict to users in देशबंधु कॉलेज and its trusted organization. ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो हमारा एडमिन है उसने db.du.ac.in के साथ कौन कौन से ट्रस्टेड डोमेन्स बनाए हुए हैं. सपोज उसने ट्रस्टेड डोमेन सेट करा हुआ है CUH, तो DB और CUH के स्टूडेंट्स को मैं दे सकती हूँ. अभी जो मैंने स्टूडेंट्स क्रिएट करे हैं वो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ और एडिट आफ्टर, सॉरी, इसको नहीं सेलेक्ट करती, एंड आई विल जस्ट सेव, राइट. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू send this assignment. Oh, sorry. Okay. Actually, you don't need to do this. ये करने की जरूरत नहीं है. Answer to डाल दी मैंने इसमें 1. Okay. अब ये मैं इसको अभी फिलहाल ऑफ कर रही हूँ. अगर ग्रेडिंग इंपोर्ट करनी है, अगर ग्रेडिंग इंपोर्ट करनी है तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो DB डोमेन के होने चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डू. ओके, आई एम गोइंग टू पुट अ टाइटल क्विज 1, एंड आई एम गोइंग टू असाइन ऑल स्टूडेंट्स. अगर आपके DB डोमेन है तो ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग जो आपने आंसर की बनाई है उससे हो जाएगी डोमेन. नाउ दिस इज द स्टूडेंट, लेट्स सी इफ द स्टूडेंट हैज गॉट द असाइनमेंट. Okay, quiz 1, no due date, view assignment. You go here, mark the answer, whatever it is, submit.
All right, you can view your score, open assignment, you will skip this part, come here and classwork or quiz. Let's see who all has submitted. One has submitted and one has been assigned. Okay, अगर DB अकाउंट पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रेड्स इसके ग्रेड बुक में यहाँ पर इन्फो हो जाते हैं. Okay, so now I want to show you something. Suppose you make your own site. इसको मैं बंद कर रही हूँ. एक अगर आपके पास G Suite अकाउंट है तो आप अपनी साइट बना सकते हैं. sites.google.com पे जाते हैं. Please don't look at the aesthetics. मैं एक बहुत ही रफ साइट बनाऊंगी एक बटन के साथ and I'll show you how you can link your classroom to the Google site. Okay. वेरी बैड नेम. आप यहाँ पे हेडर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं. एक सिंपल लिंकेज दिखा रही हूँ. यू नीड टू एड ए बटन. देयर इज एन ऑप्शन फॉर ए बटन हियर. ओके, ये बटन है. अब ये बोल रहा है बटन का नाम डालो. सो लेट मी से असाइनमेंट 1. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये लिंक मांग रहा है. So I'm going to go back to my classroom and show you where I can import the link. Let's go back here. ये असाइनमेंट है. आपको ये दिख रहा है कॉपी लिंक. ठीक है, यहाँ हर असाइनमेंट में आपको दिखेगा कॉपी लिंक. जहाँ भी ये है ना ऑप्शन कॉपी लिंक की, कोई भी मैंने ले लिया यहाँ से कॉपी लिंक. मुझे नहीं पता क्या है, लिंक कॉपी हो गया. मैं अपनी साइट पे चली गई, यहाँ पे मैंने ये लिंक डाल दिया. ओके, इंसर्ट. ये बटन आ गया. थीम से इसको चेंज कर सकते हैं. लेट्स लीव आउट दैट पार्ट. इसको चेंज कर सकते हैं थीम से. अब इसको पब्लिश कर देते हैं साइट को. ऑलराइट, वेब एड्रेस मैं दे देती हूँ माय फर्स्ट साइट. ओके ओके, इट इज ऑलरेडी देयर. इट्स अ ग्रेट एड्रेस. ओके, फर्स्ट साइट फॉर मी. ओके ओके, 111. ऑलराइट, अब रिक्वेस्ट पब्लिक इंजन्स नॉट टू डिस्प्ले माई साइट. ये मैं चाहती हूँ मेरे ही डोमेन मेरे. अच्छा, ये जो ये वाली गूगल साइट है, मोस्ट लाइकली आप अपने G Suite में ही कर सकते हैं. मोस्ट लाइकली पब्लिश हो गई है. किसी स्टूडेंट को क्लासरूम पे नहीं जाना तो यहाँ से ये लिंक कॉपी किया मैंने. ये मैंने कॉपी कर लिया. मैं अपने सब स्टूडेंट्स को ये लिंक दे दूंगी. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू put it on the chat box. Just see if you can get that. मैं इसको ना chat box पे डालती हूँ. आप देखिए अगर आ सकता है आपके पास तो. Try this link. I will tell you Vandana. I just answer what is the purpose of creating site. But this you have to try from your G Suite account. Okay. तो अब मैंने इस साइट को बंद कर देते हैं. सपोज ये नहीं है. यहाँ पे स्टूडेंट ने यहाँ पे ये लिंक कॉपी किया, इस साइट पे आ गया. गद्दी सी साइट बनी है, कोई बात नहीं. क्लासरूम में नहीं गया, वो यहाँ जाता है, वो सीधा असाइनमेंट पे पहुंच जाएगा. ओनली असाइनमेंट व्यू इज देयर, और कुछ नहीं मिलेगा उसे. ओके, तो ये यहाँ आ गया असाइनमेंट पे. ऑलराइट, एंड सिमिलरली आई थिंक यू कैन link the posts also. I haven't tested, but my mind tells me जहाँ भी copy link है सब हो सकता है. तो मैं यहाँ पर एक और बटन पोस्ट कर देती हूँ. Insert button. Let's call this check post, check announcement, sends, and I'm going to post this link and insert and publish. Okay, review differences. Okay, this पे. All right. वो कह रहे हैं इसमें डिफरेंस देख लो. देख दिया. ओके, 2 बटन आ गए. अब मैं यहाँ पर चली जाती हूँ जहाँ पे मैंने ये स्टूडेंट को दिया था लिंक. लेट्स सी इफ आई कैन सी द पोस्ट आल्सो. आई थिंक सो. So this is the post the student could see. No, this is not right. This should not be coming.
Anyway, I will check that. Not a big deal. I can check that later where I went wrong, what I copied wrong. So coming back to the class, I'm closing this site. So what I showed you was you can link the classroom. Now the classroom which is created in your G Suite account to a website if you create in your G Suite account. So now I'm going to come back to the chat. All right. If the assignment is handwritten, no, this application will not check for plagiarism. Can we show this I answered? Okay, one option unrelated to Google Classroom as we ask students to submit assignments along with originality report. Yes, Vivina, you're right. Vinita ma'am is asking how to add the student's email ID from classroom to Excel sheet. Vinita, challenge. मेरे को दो चीजें नहीं मिली इसके अंदर. I am looking into it. कि मास इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट का. I tried to, मुझे मिला नहीं अभी तक. कोई CSV एक्सेल फाइल हो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? The only thing I could find is यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट लेटर टाइप करती हूँ और मेरे डोमेन के सारे लिस्ट हो जाते हैं, I can quickly add. This is all I could find. और सेकेंड चीज और मुझे नहीं मिली अभी तक कि ग्रेड को एक्सपोर्ट कैसे करना है. Still, you know, I'm also learning. Like somebody would be at step 5 or 10. I'm still somewhere step 2, 3. People are step 0, 1. So I'm also learning. Okay. Okay, Vandita, what is the purpose function of creating a site? Yes, Vandita, in case some students are not comfortable with Google Classroom, you know, like we have some of the students who are not, not comfortable with the platform, उनको आप अपनी साइट का लिंक दे सकते हैं. Just give that link. यहाँ पे क्लिक करके तो वो आ ही जाएंगे ना. साइट पे क्लिक करके तो वो असाइनमेंट और पोस्ट देख सकते हैं. That is the purpose of creating a site. In case somebody doesn't want to access the classroom, the student, not the teacher. They don't want to access the classroom, fine. Go to a website like you normally browse a site, click on the button, you get all the homework and announcements. How can one put G Suite generate website on public engine? ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में. यहीं से है. एक सेकंड, ये तो पब्लिश हो चुकी है. उसमें एक ऑप्शन है कि आप पब्लिश कर सकते हैं या नहीं. और कैन यू हो गया. Can G Suite have URL like Genomio? Well, no, because हर बार ये चेंज हो जाएगा. जैसे Genomio में आप URL देते हैं, इसमें आप अपने अकाउंट में जाके यहाँ आ जाए. हाँ, एक तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से URL है. ये जो URL है classroom.google.com. द ओनली थिंग है आपको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है कोड के साथ, अगर आप पहले लॉग इन नहीं है तो. अगर आप अपने अकाउंट से लॉग इन है, सपोज आपका इस अकाउंट से अभी मैं लॉग इन नहीं हूँ, अगर अकाउंट से लॉग इन है आप क्लासरूम टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लासरूम आ जाएगा. अगर आप नहीं है लॉग इन तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा. सो आंसर इज यस एंड नो. दिस इज द साइट. यू पुट इन द कोड इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ नॉट, जस्ट go to classroom.com and you will join. Okay, are we getting attendance directly? I don't know, Sonia, if you are asking in Google Classroom or otherwise. नहीं समझ आ रही, but attendance directly यहाँ नहीं है. But वर्क अराउंड है, जैसे मैंने आपको दिखाया. क्लास वर्क पे जाके आप एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं अटेंडेंस का, और उसके अंदर आप रोज अटेंडेंस की डुप्लीकेट कर सकता है ये क्वेश्चन. एवरीडे डुप्लीकेट, और आपको रोज पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है. ओके, नाउ sorry, I know I'm overshooting the time, but there are a few more things. I'll very quickly wrap up. यहाँ पर हम grade category set कर सकते हैं, right? If you want students to see the overall grade, you can set it here, and you can add a grade category. जैसे assignment को कितने marks देने हैं, test को कितने marks देने हैं, ये सब हम कर सकते हैं. By and large, I have covered all the sections. I'm discarding all the changes. It's already 1:15 and we have to, disperse early, so I can have questions. I may not have all the answers because I'm myself learning. So thank you. आ गया. That was an indication कि रुक जाओ, तो मैं समझ गई.
No questions? If students post their assignment in the streaming, हो गया. तो रिकैप कर देती हूँ एक बार, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है. गूगल क्लासरूम है, सेम लिंक है, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए. स्टूडेंट को इतना दिखता है, टीचर को इतना दिखता है. ग्रेड स्टूडेंट को नहीं दिखते, सेटिंग्स नहीं दिखती हैं. स्ट्रीम कम्युनिकेशन के लिए, क्लास वर्क, असाइनमेंट, क्विज, मटेरियल सबके लिए है. क्विज ऑटो ग्रेड हो सकते हैं, इंपोर्ट हो सकते हैं क्विज के मार्क्स अगर आपके जी स्वीट के स्टूडेंट्स हैं. तो पीपल में आप टीचर्स ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं. ग्रेड्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे अगर आपने सेटिंग्स लगाई है. इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल. तो वी कैन conclude this session. I don't know if Dr. Pramod is here. Aparna, मैं जाऊं? Aparna is not here. Okay, let me mark the attendance. If anyone has a question, just let me know on the chat. I will unmute. हो गया? Like there is a bit more, quite a bit more. Yes, ma'am. But you know, it's already 1:15 and we have to wind up early today, so I'm not. Yes, ma'am. Yes, it is. Am I audible? Yes, you are. Yes, I know it is lunchtime. I saw so many thank you messages on the chat, so I thought, okay, it's time to. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am, for this wonderful session, telling all the aspects and features of Google Classroom, though we have been using quite a long back, but still some of the features we were not aware of. So thank you for telling us and elaborating each feature very well and with a lot of patience, and almost all the answers, all the questions you have answered. So thank you so much, ma'am. So we will be taking a break for lunch session, ma'am. Yeah, let's break for lunch. Over to Pramod, sir. What time are we meeting? 2 o'clock or 2:15? I think, ma'am, 2:15 सही रहेगा, 1 घंटे का break. Okay, Pramod sir is not there, so let's take 2:15. वो आके 2 बजे कर देंगे, पहले ही चले जाते हैं. ठीक है? Okay. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.